ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਤਰੀਕ ਹੈ, 1, 2 ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਤਲੇਆਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੰਗੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਧਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾ ਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੀ 2 ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਲੋਕ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ, 31 ਵਾਲੀ ਕਿ 1 ਵਾਲੀ? ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਦੀ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਉਹਨੇ 2 ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਆ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਉਹ 31 ਦੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1 ਦੇ ਰਾਤ ਖੁਣੀ 8, 9 ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਵਰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਮੀਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ, ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪੈਸੇ 4 ਕਮਾ ਲਈਏ। ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ? ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ ਨੇ ਸਾਡਾ?
खैर मैं जी बेनती कर लग्या तां विचों मैं शुरू च कहा कि दुबदावां इन्नियां पाईयां होईयां, कौम जिहड़ी है ना साध संगत इस वेले जिथे लिया के खड़ी कर दी। वाहिगुरू किरपा करे। असीं जिहड़ी गल कर लगे दाता बंदी छोड़, दाता तू किरपा कर तो ते बंदी जिहड़े बद्धे सी छड़ा लए ने, किसी इस कौम नूं भी बंदी चों बाहर कढ जिहड़ी अज बंधनां च फसी पई है। आओ सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी जिहड़ा बंदी छोड़ दिवस की है असल विच साध संगत सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी की जदों शहादत हुंदी है लाहौर विखे तत्ती तवी ते बिठा के गुरु तेग अर्जन देव महाराज जी नूं सीस विच रेता पा के उन्हां नूं शहीद किया गया। तो सतगुरु महाराज जी जान तो पहला यह गल कह गए सन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं गुरता गद्दी देन लग्या, बेटा इस वेले ये शांतमई शहादत है, जबर दा मुकाबला सबर नाल हो रहा है, पर जे जालम बाज ना आए तो पुत फिर हथियार चुकना, तलवार चुकनी, शस्त्र चुकना ये धर्म होवेगा। ये हुक्म सतगुरु गुरु अर्जन देव जी कर गए सन। खैर सतगुरां दी शहादत हो गई। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी गद्दी ते विराजमान, क्योंकि मैं इतों गल शुरू कर लग्या, जे आप बचपने तो गल शुरू करांगे तो बहुत लम्मा इतिहास चलिया जाना। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान ने, उदों सतगुरां दी उम्र तकरीबन 11-12 साल के करीब मन्निया जाता भी इन्नी सतगुरां दी आरबला है गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दी। साहब जी ने की कीता, गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी ने साध संगत हरमंदिर साहब के सामने महाराज ने अकाल तख्त की सिरजना की। यह सन 1609 में तैयार होया है। 1606 में शहादत हो जाती गुरु अर्जन देव महाराज जी की। 3 साल बाद जो इतिहासकार कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने अकाल तख्त साहब की सिरजना की। और बनाया किन्ने अकाल तख्त साहब नूं बनाउण विच किहड़े कारीगरां ने बनाया नूं, ते इहनूं लिखिया होया है साध संगत जी कि किसी राज ने हाथ लगायो बुढ़े आओ गुरदास बनायो। किसी राज ने हाथ लगायो, किसी कारीगर राज मिस्त्री ने तैयार नहीं किया, बुढ़े और गुरदास बनायो। इसका मतलब बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास ये गारे ते इट्टां फड़ा रहे हैं, तो गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी आप उस तख्त नूं बना रहे हैं। उस तख्त का नाम रखिया अकाल दा तख्त। अकाल जो ऐड़ा गेतर लग जाए तो साध संगत यदा मतलब जाता समय दे विच नहीं, जो काल तो रहत है। काल का मतलब होंदा समा, समय के अधीन चलना, पर यह समय के मुताबिक नहीं है, ये ते कदी समा नहीं व्यापना। साध संगत ये हमेशा अकाल पुरख वाहिगुरू का तख्त बना दिता। जदों गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी उहदे ते विराजमान होए तो 2 ढाडी सन, ढाडी नत्था ते ढाडी अब्दुल्ला सुर सिंह नगर के रहन वाले। वो सतगुरु गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी के चरणों में आए। उन्होंने गुरु हरगोबिंद महाराज जी के शीश उत्ते सोहनी कलगी देखी, महाराज दे गातरे पाइया हुई 2 किरपाना देखियां, उपर थड़े ते बैठिया वेख्या सतगुरु महाराज जी नूं। उन्होंने फिर गुरु हरगोबिंद साहब की सिफत की। सिफत किवें कीती? उन्होंने 2 वारां गुरु हरगोबिंद साहब दी, एक ते तख्त उत्ते बैठण दी, एक सतगुरां दे मीरी पीरी किरपाना धारण करन दियां। 2 उन्होंने वारां गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी दियां गाईयां। एक सी कि सच्चा तख्त सुहायो श्री गुर पाए कै। इहदा मतलब सी गुरु हरगोबिंद महाराज जी तुहाडा तख्त सच्चा है, वो शोभनीक है जिथे गुरु हरगोबिंद महाराज जी बैठे है। सच्चा तख्त सुहायो श्री गुर पाए कै, शब बरनी ना जाए कहूँ जस गाए कै। वो लिखते हैं कि रब सस भय मलीन जो दर्श दिखाए कै। ते गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी श्री गुरु तख्त बिराजे प्रभु ध्याए कै, मीर अब्दुल अर नथ जस कहो बनाए कै। इहदा मतलब सी कि ढाडी नत्था ते अब्दुल्ला गुरु हरगोबिंद साहब के तख्त उत्ते बैठण दी वार गा रहे। फिर जो सतगुरु महाराज जी के शीश ते कलगी ते तलवारां वेखदे है, उदों अगली वार गाउंदे आ कि 2 तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करै वजीर दी, हिम्मत बाहा कोट गढ़ दरवाजा बलख बखीर दी, नाल सिपाही नील नाल मर दुष्टा करै तगीर दी, पग तेरी की जहांगीर दी। इहदा मतलब सी कि गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी तुहाडी पग दे सामने जहांगीर दी पग की है। गुरमुखो गल चेते रखियो जे, जदों ढाडी नत्था ते अब्दुल्ला गुरु हरगोबिंद साहब की वार गा रहे हैं, उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का जो जिक्र किया है तो उहदे बराबर ते जिहड़े पहला हो चुके बादशाह राजे उन्हां मरियां दा जिक्र नहीं किया। किड्डी वड्डी गल सी। जिहड़ा बादशाह मौके ते तख्त ते बैठा जहांगीर उहनूं वंगार के कहा
कि महाराज नूं कह रहे महाराज तुहाडी पग दे सामने जहांगीर दी पग की है। इहदा मतलब है कि गुरु हरगोबिंद साहब की सिफत कर रहे हैं। फिर महाराज ने हुक्मनामा जारी किया, जिन्हों कह लो गुरमता हुक्मनामा गुरु हरगोबिंद साहब ने। महाराज कहते जिन्हें इत्थे आउणा साडे कोले वो चंगे शस्त्र लियावे, घोड़े लैके आवे ते नौजवानियां दी लोड़ है। फिर सतगुरु महाराज जी के चरणों में तकरीबन 500 के करीब गुरसिख जिहड़े सी मरजीवड़े जिन्हों असीं कह सकते हैं, वो मरजीवड़े 500 गुरसिख महाराज के चरणों में आए तो जिन्हों ने यह कहा सतगुरु 2 टाइम की रोटी चाहिए है तो 6 महीनों बाद सानू तन ते पाउण नूं वस्त्र चाहिए, ये तो इलावा सानू होर किसी चीज़ की जरूरत नहीं। ये 500 महाराज के नाल ते 52 महाराज के नाल सूरबीर वो योधे सन जिन्हों अंग रखिया का आपां कहने हर वेले महाराज के नाल जिहड़े रहिंदे सन। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर रहा साध संगत, जदों गुरु हरगोबिंद महाराज के तख्त का पता लग गया, वो फौज बनाई इसका पता लग गया, तो जहांगीर बादशाह जिहड़ा है ना इन्हें 18 साल की उम्र तक कोई नशा नहीं किया। जहांगीर ने 18 साल तो बाद इनू किसी ये एहलकार ने कह लो या किसी मंत्री संतरी किसी ने भी इनू एक दिन शराब पिया दी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ शराब पियाउण कि खुद अपनी जीवनी च लिखता है, कहता 5 सेर रोज़ की शराब मैं पींदा सी। जहांगीर लिखता 5 सेर रोज़ की। तो शराबी बंदे तुहानूं पता ही है, कोई दीन मार्ज धर्म नहीं उहदा हुंदा, वो घड़ी च तोला तो घड़ी च मासा हो जाता है। इहदी जिहड़ी हालत, इनू दमे के दौरे भी कई बार पए। इनू जदों मैं जिहड़ी बेनती कर लग्या साध संगत, एक कश्मीर नूं चलिया सी ते रस्ते विच तुरदियां तुरदियां ये ब्यास गोइंदवाल पहुंचिया। इन्हें तकरीबन इहों कह लो जो प्रोफैसर साहब सिंह हुणां ने लिखिया, मैं 3-4 जिहड़े विद्वान ने उन्हां दे तुहानूं वो किताबां दे विचों हवाला देण लग्या। एक तां प्रिंसीपल गंगा सिंह जी, दूसरा ने गुरु कीआं साखियां प्यारा सिंह पदम ने जिहड़ी पुस्तक है उन्होंने संपादन किया है। फिर प्रोफैसर साहब सिंह ते प्रिंसीपल सतबीर सिंह आदि जिहड़े ये विद्वान ने, इन्हां तो जो किताबां च मैं पढ़िया मैं तुहानूं वो गल सुणाउण लग्या, कोई कोलों नहीं मैं अपने बनाउणी। मैं बेनती कर लग्या कि साध संगत इहने कुछ दिन इत्थे ठहरिया है ब्यास दे नेड़े च। कहंदे इत्थे जदों कुछ दिन टिकिया तो इहनूं सुणन नूं मिल गया कि गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी की सिफत बच्चे बच्चे की जबान उत्ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का नाम सी, महिमा हो रही सी महाराज की। क्योंकि गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जिथे काल पीड़ित लोग सन उन्हां दी जा जाके महाराज ने सेवा भी की। तो गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह मनुखता की सेवा दे विच करदियां करदियां इन्ने हरमन प्यारे हो गए सन कि हरेक की जबान उत्ते गुरु हरगोबिंद साहब की सिफत सी। जहांगीर बादशाह ने सोचा कि जिहड़े हिसाब नाल गुरु हरगोबिंद महाराज जी फौज तैयार कर रहे हैं, बच्चे बच्चे की जबान उत्ते उन्हां दा नाम है, ਉਹਦੇ अंदर दा पाप ਇਹ कंबदा सी कि इन्हां दे पिता गुरु अर्जुन देव महाराज जी नूं मैं लाहौर विखे शहीद किया है, किते ऐसा ना होवे ये किते भांबड़ बन के मेरा जिहड़ा राज तख्त है ਉਹਨੂੰ नुकसान ना पहुँचा देन, इस गल्लों डरदा पिया सी। महाराज दी बाणी कहती है सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी बगसेत। जिहड़े बंदे ने पाप कमाया साध संगत जी वो हमेशा कंबदा रहिंदा ते डरदा रहिंदा है। हुण बादशाह जहांगीर ने की कीता, ये दिल्ली आ जाता है। इत्थे आके ने गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी के वारंट जारी कर दिते। उतों इउं कह लो कुछ विद्वान तो यह कहते हैं कि महाराज के वारंट जारी किए, कुछ विद्वान कहते हैं उन्हें एक चाल खेडी। उन्हें कहा भी गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह नूं दिल्ली किसी तरीके नाल बुलाया जाए। उन्हें 2 बंदियां नाल सलाह की, एक सी वजीर खां एक सी गुंचा बेग। यह वजीर खां वो नहीं जिहड़ा साध संगत बाद विच आउणा जिन्हें छोटे साहिबजादियां नूं शहीद किया है, ये गुरु घर का श्रद्धालु है, गुरु महाराज के गुरु घर के नाल जुड़िया होया ये व्यक्ति है भावें सरकारे दरबारे की पहुँच है, वजीर है। उन्होंने कहा कि गुरु हरगोबिंद महाराज जी नूं लैके आओ। वो आया अमृतसर साहब की धरती ते, उन्हें महाराज नूं बेनती की सतगुरु जी बादशाह तुहानूं मिलना चाहुंदा है। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह सारी गल जान गए सन। उन्होंने सलाह की गुरसिखां नाल, जिवें बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास जी होर गुरु के सिख सन जिहड़े, उन्हां नाल गुरमता कीता भी की करना चाहिए। सारियां दी सलाह एक हो गई कि महाराज जाना चाहिए है, बादशाह नाल गल करनी चाहिए है, उन्होंने दसना चाहिए तो जुल्म किन्ने कीते, महाराज जे बुला लिया तो सानू जाना चाहिए। यह फैसला हो गया। गुरु हरगोबिंद महाराज जी कह लगे कि तुसी जाओ, जरूर मिलना चाहिए बादशाह नूं। सतगुरु गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी तुरदे है, गुरमुखो सतगुरु महाराज जी दिल्ली पहुँच जाते हैं। इत्थों दिल्ली तो बादशाह जहांगीर नाल गलबात मुलाकातां हुंदियां ने। यह काफिला चलिया जांदा आगरे बड़ी स्कीम नाल।
ਇਹ ਨਹੀਂ कि उन्हें महाराज ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ग्वालियर ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ कैद कर लग्या। ਇਹ ਗੱਲ चेते रखियो जे, भावें राजनीति उदों दी होवे ते भावें अज दी होवे, भावें उस टाइम ते बादशाही राज सी, अज भावें साध संगत जी असीं लोकतंत्र की गल करते हैं, डेमोक्रेसी की गल असीं करते हैं, अज भी उही चालां ने जिहड़ियां उस वेले चलियां जांदियां सन। अज दे लोग भी पता नहीं लगन दिंदे सानूं किहड़े वेले गेम खेड जाते हैं, पता उदों लगता है जो सारा कुछ वापर जाता, सानूं समझ उदों आउंदी है। ये शुरू तो चलता आया, क्योंकि बहुत तेज तरार ये लोग हुंदे है। बादशाह जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद महाराज जी नूं ग्वालियर काफला बन के तुरिया जा रहा है। एक तंबू च किते किते महाराज जिथे टिकते हैं, उत्थे गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह का वखरा तंबू है, बादशाह जहांगीर का वखरा है। ये आगरे पहुँच जाते हैं। जिहड़ी आम तौर पर एक कहानी सुनाई जाती है ना, साखी बड़ी हरमन प्यारी, वो बहुता तर विद्वानों ने सुनाई है ग्वालियर के किले चों रिहा होने तो बाद। पर नहीं, साध संगत जी विद्वान कहते हैं, प्रिंसीपल गंगा सिंह होनी कहते नहीं, ये कहानी पहलां वापरदी है। क्यों वापरदा? कारण सी, क्योंकि गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज सिख जिहड़े सन वो सच्चा पातशाह कह के बुलाउंदे सी। महाराज का जो नां लैंदे सच्चा पातशाह कहंदे सी। ते बादशाह जहांगीर ने एक दिन मन च यह कहा कि सतगुरु जी तुहानूं सच्चा पातशाह क्यों, मैनूं कहना चाहिए। गुरु साहब ने कहा, गुरु नानक दे घर दे निमाणे जे सेवक हाँ, असीं नहीं किसी संगत नूं कहिंदे भी सानूं सच्चा पातशाह कहो, संगत अपनी भावना नाल शब्द वरतदी है। खैर उहदे सवाल का जवाब भी देना सी। कहंदे ने कि सतगुरु महाराज जी आगरे पहुँच गए तो उत्थे एक घाई जिहड़ा है ना, आम ये साखी तकरीबन सारे विद्वान सुणाउंदे है। एक गुरसिख घाई जिहड़ा सी, घोड़िਆਂ ਨੂੰ कह लो कि पट्ठे पाउण वाला जिहड़ा घाह खोद के लिआउंदा सी, ते ओही उहदी किरत सी। उन्हें गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी की सिफत सुनी सी, दर्शन करना चाहुंदा सी महाराज दे। एक टका उहदे कोल है, घाह दी पंड उन्हें तैयार की है। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी नूं ध्या रहा है। जदों पता लग्या दो तंबू लगे, इधर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज आ रहे हैं, भुलेखा पै गया, जहांगीर दे तंबू में चलिया गया। जो विद्वान कहते हैं जहांगीर दे तंबू में जाता है, उत्थे जाके मत्था भी टेक दिंदा है, भेटा भी अपनी रख दिंदा है, पर चेते रखियो भुलेखे च हो रहा सारा कुछ, जान बुझ के नहीं सिख कर रहा, अनजान पुणे विच हो रहा। चेते रखियो अनजान पुणे विच कीती गलती माफ़ हो सकती है, जान बुझ के कीतियां होईयां गलतियां माफ़ नहीं हुंदियां, जिहड़ियां जान बुझ के करदे असीं। क्योंकि बाणी का एक बचन हुंदा, मन जाने सब बात जानत ही अवगण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं पड़े। जिहड़ा बंदा हाथ च दीवा फड़ के ते रोशनी विच खूज छाल मारे, दसो उहदा कित्थे भला हो जाएगा। मैं जिहड़ी बेनती कर लग्या साध संगत, इसने जदों मत्था टेकिया ते बादशाह जहांगीर पुछदा भी की चाहिए, इहदे शब्द जिहड़े सन, इन्हें कहा सतगुरु तुहानूं पता की चाहिए, तुसीं जानी जान हो, महाराज ऐसी कृपा कर दिओ, शब्द बख्शो, जे शब्द दे नाल मेरा पार उतारा हो जाए, मेरा जन्म ते मरण मुक जाए, आउण जाण दा सिलसिला खत्म हो जाए। हुण बादशाह जहांगीर दा मत्था ठणकिया, उन्हें कहा ते मेरे गलत रस्ते ते आ गया है, इन्हें जाना सी गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे कोले। बादशाह जहांगीर ने कहा वेख तू भुलेखे नाल इधर आ गया, मैं सच्चा पातशाह नहीं। जिहड़ा ये कहंदा सी मैनूं क्यों नहीं कहिंदे, वो कहंदा मैं सच्चा पातशाह नहीं। वो गुरु हरगोबिंद साहब दूजे तंबू विच ने, जिहड़ियां तू अरदासां करदा है, ये अरदास पूरी करने वाले गुरु हरगोबिंद महाराज जी हैं। अगली गल वेखियो गुरमुखो, इन्हें जिहड़ा पिया होया टका सी भी चुक लिया, ते घाह दी पंड भी। ये बड़ी वड्डी इउं कह लो कि बादशाह दी हेठी करना है। किसी दे अगे खास करके बादशाह होवे ना, उहदे अगे जे कोई चीज़ रख देवे तो चुकना बादशाह की बहुत वड्डी बेइज्जती मन्निया जाता है। उन्हें टका चुकया, बादशाह ने कहा टका नहीं चुकना। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा ये बदले जिन्ना होर को चाहिए धन तेनों मैं दे देंगा, पर यह टका बादशाह के अगे रखी हुई जी भेटा होंगी है, पैसे होंगे चुकी दे नहीं। विद्वान ये कहते हैं कि उस बंदे ने अगों ये कहा, कहन लग्या जिहड़े पहला राजे हो चुके लोधियां दे राज दी जिहड़े पैसे होण कि तेरे राज विच चल सकते हैं? उन्हें कहा बिल्कुल नहीं। उन्हें कहा जे उन्हां दे राज दे पैसे तेरे राज विच नहीं चल सकते, फिर ये जिहड़ी भेटा है गुरु हरगोबिंद महाराज जी दी है, ये तेरे अगे भेटा नहीं रखी जा सकती। ये उन्हें उदाहरण कहते दिती सी। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर लग्या साध संगत, ये उत्थों उठिया, गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज तंबू वाले वधिया। सतगुरु महाराज जी गुरमुखो, गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज तंबू विचों बाहर निकले, गुरसिख नूं अपनी गल वकड़ी विच लिया ते महाराज ने उहदे उत्ते अनेकां बख्शिशां कीतियां। खैर इस तो अगे चलीए
कि हुण सतगुरु गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी नूं जदों ग्वालीयर पहुँच गए उत्थे फिर कैद करन दा हुक्म कर दिता ग्वालीयर दे किले। हुण ग्वालीयर दा किला ही क्यों चुनिया गया, होर कोई जेल कोई किला क्यों नहीं चुनिया, उहदा कारण की सी? सब तो वड्डा कारण इक्को ही है कि ग्वालीयर दा किला बनाया ही उन्हां वास्ते गया जिहड़े बागी सन, ते जिहड़ा ग्वालीयर दे किले विच एक बार जिंदा चलिया जावे वो जिंदा वापस नहीं सी आउंदा। मैं जो इतिहास विचों पढ़िया कहिंदे ने कि जिहड़े उत्थे 52 राजे जां 101 का वैसे जिक्र किया प्यारा सिंह पदम होना ने, गुरु की साखियां नाम की पुस्तक है जो भट्ट वईयां दे उन्होंने संपादना की, उहदे विच 103 का जिक्र वो करते हैं। 52 राजे वड्डे ने जिन्हां नूं आस कदे नहीं सी छुट्टण दी, ते जिहड़े साध संगत 51 राजे सन वो छोटिया छोटे कह लो सन वो सीगे। खैर मैं जिहड़ी बेनती कर लग्या साध संगत, गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज नूं ग्वालीयर के किले वास्ते मैं बेनती कर लग्या सी भी क्यों चुनिया गया, क्योंकि जिन्ने भी राजे उत्थे सन उन्हां तो सरकार नूं हकूमत नूं खतरा सी। उन्होंने किसी तरीके नाल फड़ फड़ के सारे उत्थे कैद किए। उन्होंने मारन दियां 2-3 तरीके सन। एक तो यह सी भी उन्हां दे खाने दे विच जहर मिलाया जांदा सी, उन्हां दे खाने विच इहो जिहा हौली 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 उन्हां दी मौत होवे। उन्हां दी खुराक इदां दी बना के दित्ती होई सी जिहदे विच ओह हौली हौली मरन, एकदम उन्हां दी मौत ना होवे। विश्वादिक भी जिहड़ा है लड़ाउण दी गल इतिहासकारां ने जिक्र किया है। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी किले में चले गए। हुण मैं जिहड़ी बेनती कर लग्या, क्योंकि बहुते लोगों ने हुण तक ढाडियां कविशरां ने सानू ये इतिहास सुनाया होया, अजे तक साडे अंदरों निकलदा नहीं हो। तुसीं सोचदे होवोगे बाबे ने वो गल क्यों नहीं कीती जिहड़ी प्रचलित है कि बादशाह जहांगीर दे उत्ते साड़ सती आ गई सी, वो अपनी साड़ सती टलाउणा चाहुंदा सी। गुरु हरगोबिंद साहब नूं कहा मेरे वास्ते 40 दिन तुसीं जप तप करो, मेरी साड़ सती टल जाए। हुण तक साडे उत्ते आ प्रभाव पाया गया है कि गुरु साहब साड़ सती टालन गए ने। उहदी पहली गल तो गल ही गुरमत के बिल्कुल उल्ट है, गुरमत इहदे नाल बिल्कुल सहमत नहीं कि साड़ सतियां दी गल होवे। दूजी गल वो गुरमुखो गुरु हरगोबिंद साहब नूं वो ग्वालीयर के किले च कैद कर रहा है। जे साड़ सती टलाउणी हुंदी तो अपने महलों च लैके जांदा, जिथे बादशाह मान लो, मैं अगे भी कई बार उदाहरण दित्तियां ने कि सानू कोई इत्थे आके कहे बाबा जी घरे चलो तो पाठ करवाउणा आपां भी घर च जो सुख शांति वरती जाए। हुण जे कोई सानू घरे खड़े पाठ करवाउण वास्ते सुख शांति वास्ते ते लिजावे सिर्फ घर दे भले वास्ते, उत्थे लिजा के काल कोरडी टाड़ देवे बाबे नूं, जिथे ना पानी मिले ना धुप मिले ना छां मिले, ते बाबे दा साह घुट्टिया जावे। दसो ओहदियां अरदासां किहो जिहियां करूओ, ओहदी साड़ सती वधूगी कि टलूगी? ओहदी गल ही सिद्धी उल्ट है कि बादशाह गुरु हरगोबिंद साहब नूं कैद कर रहा, ग्वालीयर के किले विच कैद क्यों कर रहा है? ਉਹਦਾ मैं तुहानूं बेनती पहला कर गया कि साध संगत जिहड़ा माझा इलाका दुआबा इहदे च गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मालवा भी नाल ही कह लो, सिक्खी इन्नी वध चुकी सी कि हर बच्चा बच्चा सतगुरु महाराज जी के नाम तो जाणू सी ते गुरु घर दे लई मरण मिटण ते तैयार सन। जिहड़ी वो फौज तैयार की असल में डर इस गल दा सी। गुरु हरगोबिंद महाराज नूं ग्वालीयर के किले विच कैद कर दिता गया। हुण इत्थे कैद दा जदों असीं जिक्र करदे हां, कुछ कहिंदे ने कि महाराज नूं 12 साल, क्योंकि 12 साल वाली गल मनण योग नहीं। सतगुरु महाराज जी दे 5 पुत्र ते 1 बेटी है। जदों उन्हां दीयां जन्म डेटां देखदे हां ते फिर 12 साल वाली गल रद्द हो जाती है। 12 साल महाराज नूं उत्थे नहीं रखिया, सिर्फ ते सिर्फ सतगुरु रहे ने 2 तो 4 महीने तक। विद्वान जो मनते हैं 2 तो 4 महीने के विच दा समा 2.5 हो सकते, 3 हो सकते, 3.25 हो सकते। 2 तो 4 महीने के विच इन्ना समा महाराज नूं ग्वालीयर के किले विच कैद किया है। हुण सतगुरु महाराज ग्वालीयर के किले में जो पहुँच जाते गुरमुखो, उत्थे गुरु साहब ने सब तो पहला हुक्म यह किया कि इत्थों का खाना महाराज ने कहा ना कोई कैदी खाएगा, ना आप छकांगे ना किसी को छकण देंगे। उत्थे फिर जिहड़े गुरु के सिख साध संगत बाहर जाते सन, किरत करते सी, वो जो रसद लैके आउंदे सी उहदे नाल लंगर तैयार हुंदा सी। सतगुरु महाराज ने ग्वालीयर के किले विच लंगर तैयार करना शुरू कर दिता। 2 टाइम दीवान लगना शुरू हो गया, सवेरे शाम दीवान सजदा है। महाराज ने ग्वालीयर के किले नूं कह लो कि बाणी की तुक पढ़ लईए, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। वो थान पवित्र हो गया जिथे गुरु जी जाके बैठ गए। खैर मैं गल लमकावा ना कि साध संगत जी इधर बादशाह जहांगीर वो इवें कह लो कि डर रहा है, कंब रहा है, उसकी आत्मा झंझोड़ी जा रही, वो अंदरों पाप जिहड़ा सी ना वो पाप इहनूं कंबा रहा सी, कंबदा पिया सी अंदरों।
मैं पहला भी जिवें जिक्र किया 2-3 वार इस बंदे नूं जिहड़ा असीं इहनूं दौरे पए ने 2-3 वारी ये मसा मरदा मरदा बचिया। हुण इन्ना बीमार होया, इन्हें वैद हकीम सारे बुलाए पर गल कोई समझ नहीं आ रही। आखिरकार ने साईं मियाँ मीर नाल तालमेल किया। साईं मियाँ मीर जी नूं बुलाया कि इस वेले मेरी कोई बांह फड़े, मेरे इस वेले दुख नूं कोई कट्टे। बादशाह जहांगीर कह रहा है तो साईं मियाँ मीर जी कहते ने बादशाह जेड़ा बंदा अल्लाह नूं दुख देवे उन्होंने सुख नहीं कदी मिल सकता। ये साईं मियाँ मीर कह रहे हैं अल्लाह नूं दुख दे के सुख कित्थों लभदे हो। उन्होंने कहा अल्लाह नूं मैं दुख किवें दिता है। फिर साईं मियाँ मीर जी ने कहा पहला तो अल्लाह नूं तत्ती तवी ते बिठाया, उहदे सीस च रेता पवाया, उन्होंने शहीद किया। वो सी गुरु अर्जन देव महाराज, उन्होंने दे होनहार पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब नूं तूं ग्वालियर के किले विच जो अल्लाह का रूप ने उन्होंने कैद किया। सुख भालदा है कि गुरु हरगोबिंद महाराज जी ने की केड़ा तेरा राज भाग जिहड़ा है वो कब्जा किया है। साध संगत साईं मियाँ मीर ने क्लास लाई कह लो बादशाह जहांगीर दी। उन्हें कहा फिर की करना चाहिए, कहता छड्डना चाहिए महाराज नूं। बादशाह जहांगीर मन गया कि गुरु हरगोबिंद महाराज नूं रिहा कर देना चाहिए। वो सतगुरु महाराज जी की रिहाई का हुक्म करता है। वो चिट्ठी जाती है साध संगत जेल के दरोगे हरिदास नूं। इनू किसी ने बनजारा भी लिखिया, किसी ने वख-वख नाम दिते ने। है सी ये साध संगत आगरे का रहने वाला, गुरु का इं कह लो श्रद्धालु सी, भावें जेल रहे इं कह लो तुसीं अज दे शब्दां विच कि किले दा जिहड़ा उस वेले इंचार्ज है हरिदास दरोगा, पर है गुरु घर दा। बहुत ऐसे सन ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ उस ਵੇਲੇ बादशाह की नौकरी भी करते सी ते गुरु घर के नाल भी शरधा रखते सन। ये हरिदास जेल का दरोगा जिहड़ा ना इन्हें साध संगत गुरु हरगोबिंद महाराज नूं एक होर गल भी दसी सी, जिहड़ी चंदू ने गुरु महाराज नूं खत्म करन लई एक चोला भेजिया सी जहर ला के, ते उहदे च एक चिट्ठी पा के भेजी सी हरिदास जेल के दरोगे नूं कि गुरु हरगोबिंद साहब दा तू श्रद्धालु है, तू कवेंगा तो गुरु साहब चोला पा लैणगे। उस चोले नूं जहर की पुठ दित्ती हुई सी। जब महाराज चोला पाउणगे जहर शरीर में फैल जाएगा, गुरु साहब की मौत हो जाएगी। ये चंदू दीयां स्कीमां सन। खैर मैं जी बेनती कर लग्या जो हुक्म बादशाह का पहुंचया, महाराज ने कहा जावांगे जरूर जेल तो बाहर, इस किले नूं छड्ड के जावांगे पर कल्ले नहीं। आ जिहड़ा 101 3 राजा है इनू नाल लेके जाना है। साध संगत फिर बादशाह कोले गल पहुंची कि महाराज कल्ले नहीं जाना चाहते, वो सारे राजा नूं नाल जाना चाहते हैं। बादशाह ने कहा भी गुरु साहब जे उन्हां राजे नूं लिजाना चाहते हैं फिर इस गल की की गारंटी है भी राजे बगावत नहीं करनगे। इस गल की कोई गारंटी, मान लो बाहर जाके जे बगावत कर दी उन्होंने फिर दा जिम्मेवार कौन होएगा। किड्डी वड्डी गल सी। गुरु हरगोबिंद महाराज कहते उहदी जिम्मेवारी मेरी होवेगी। ये किड्डी वड्डी गल सी। महाराज कहते कोई तेरा हाँ इन्नी गल जरूर ठीक है कि जेड़े जेड़े राज दे राजे ने अपना अपना इन्होंने हक मिलना चाहिए है, पर तेरे ते वधीकी कोई इन्हां विचों नहीं करेगा। गुरु हरगोबिंद महाराज ने वचन किया। फिर साध संगत कुछ विद्वान कहते 52 कलियां वाला, कुछ विद्वान कहते 101 कलियां वाला चोला तैयार किया गया। 2 कलियां जड़ियां पल्ले दियां फड़ाइयां गईयां। इस तरह 103 जिहड़े राजे सन वो ग्वालियर के किले विचों गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी उन्होंने रिहा करके जो बाहर निकलते हैं। मैं बहुत इतिहास छड्ड गया क्योंकि समा बड़ा तेजी नाल चल रहा। मैं कई गल्लां छड्ड गया कि बाबा बुढ़ा साहब जो अमृतसर तो चौंकी लैके गए वो भी मैं इतिहास छड्डिया। काफ़ी गल्लां मैं विचों छड्डियां हुईयां ने क्योंकि समय दे विच रह के मैं चाहुंदा सी भी अपनी गल पूरी कर जावां। सतगुरु महाराज जी ग्वालियर के किले चों जदों बाहर आउंदे आ, सब तो पहला जिहड़ा हरदास ये जिहड़ा जेल का दरोगा सी, इतिहासकार कहंदे आ सब तो पहला गुरु की खुशी इस बंदे ने मनाई सी बाहर आउण दी। कुछ कहंदे दीपमाला कीती उहने अपने घर विच। हरिदास जिहड़ा जेल का दरोगा सी, सतगुरु महाराज जी नूं अपने घर लिजाण दा जिक्र आउंदा है। खैर गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी ते बादशाह जहांगीर ये दोनों ही चलते हैं उत्थों। साध संगत कल्ले नहीं, ये काफला चलता आया अमृतसर पहुँच गया। गुमटाले आके जिहड़ा सी वो बादशाह जहांगीर का कैंप जिहड़ा सी गुमटाला, गुमटाला समझते अमृतसर के नाल जिहड़ा एयरपोर्ट रोड है ना अमृतसर, जिहड़े वीर जिन्होंने पता होगा उस एरिए का, उत्थे गुमटाला एक शहर विच ही मिल गया हुण तां अमृतसर दे। उत्थे गुमटाले बादशाह जहांगीर का तंबू सी ते गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह महाराज जी अकाल तख्त साहब ते हन। दरबार साहब हरमंदर साहब बादशाह जहांगीर आया, उन्हें दरबार साहब भी मत्था टेकिया, अकाल तख्त साहब भी वेख्या, माता गंगा जी दर्शन भी किए जो इतिहास कहता है। इतों फिर इन्हें महाराज नूं कहा सतगुरु जे लाहौर तक तुसीं चलो नाल। ते असल में डर भी रहा सी कि किते महाराज वो क्योंकि उदों अंदर पाप कंबदा सी ना, वो महाराज नाल
ਆਪਣਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੜਭੂੰਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੜਭੂੰਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਢੁਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਐ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਨੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 22 ਵਾਰਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ